everyone. I once again welcome you all to my YouTube channel IELTS platform. I am Kunjan Jain and I shall be sharing writing task 2 which is essay with all of you today. मुझे मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट करा है कि मैं अपनी वीडियोस को कुछ हिंदी यूज करके भी शेयर करूं ताकि सबको समझने में आसानी हो. So I am going to use both Hindi and English today for my video. We have already done writing task 1 for academic as well as general students, and I also shared with you one speaking topic. Today we are going to do writing task 2. Writing task 2 जो कि ऐसे है वो हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो एकेडमिक कोचिंग मीन्स स्टडी पर्पसेस के लिए या जनरल ट्रेनिंग मीन्स परमानेंट रेजिडेंसी या एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए अब्रॉड जाना चाहता है, दोनों को ही एग्जाम में ये टॉपिक आता है. यू आर गिवन 40 मिनट्स मीन्स आपके पास 40 मिनट का समय होता है इस टॉपिक को करने के लिए और आपको कम से कम मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं आप 280 तक लिख सकते हैं. So let us see how the essay is written. We are given a question statement. Let us see what the statement is about. Okay, before moving on to the question statement, let us see what are some of the important things while writing an essay. आप essays of course आपने अपनी लाइफ में लिखे होंगे, लेकिन थोड़े से कुछ चेंजेस हैं आइल्स की राइटिंग एसे में, तो वो देखते हैं क्या है. सबसे पहली बात जो है वो ये है कि ये ऐसे ग्लोबल लेवल पर है, मीन्स आप किसी भी प्रॉब्लम को अपनी कंट्री के बारे में नहीं बता रहे हैं. मीन्स यू आर नॉट डिस्कसिंग प्रॉब्लम ऑफ योर ओन कंट्री, यू आर टेकिंग द इशू और यू आर टेकिंग द टॉपिक इन कंसिडरेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड. So do not mention about your country and especially do not criticize your country. Yes, definitely you can quote an example of your country, right? The next point to keep in mind while writing an essay is, I have already told you, do not criticize your country. अपनी country की बुराई please अपने essay में मत लिखिए. The next point to consider is avoid I, me, we, are, us, you, your. ऐसे में मैं, हमारा, हम, तुम, तुम्हारा, इस तरह के वर्ड्स को प्लीज यूज करना अवॉइड करिए. These are not required and these will fetch you less bands. The next point is use third person pronoun. अब मैंने I, me, we, you, us ये यूज करने से मना कर दिया. So what you can use? You can use he, she, they, like these words, or you can totally move on to impersonal pronouns. Means आप किसी person को refer ही ना करें और directly अपना essay लिखने की कोशिश करें. The next point is avoid personal touch, keep the view general. आपको उस टॉपिक के बारे में क्या राय है that you can give in a line or two, but do not make it personal, do not link it to yourself, keep the essay general. Means how it would affect the world or what is the consequence of the particular thing which is being talked about in essay, right? अपने बारे में अपनी सोच को एक या दो पॉइंट्स में लिख सकते हैं, बट ऐसे आपकी सोच पर अगर पूरा निर्भर हो जाएगा, पूरा डिपेंडेंट हो जाएगा, तो वो ऐसे आपका गलत भी हो सकता है या बायस मीन्स पक्षपाती भेदभाव टाइप भी हो सकता है, राइट? सो लेट अस सी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट very 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 important. It is for all the writing task of IELTS. Whether you are writing task 1 academic or general, means you are writing a graph, you are writing a letter or you are writing an essay. तीनों में ही ये चीज़ बहुत बहुत important है और वो ये contractions means short forms. अब short forms कैसे? जैसे कि हम that is को लिख देते हैं IE. We write don't for do not. We write can't for cannot. Such things are not allowed in IELTS. Please mention. IELTS में चीज़ें allowed नहीं है. Of course, they are a part of English, but not a part of IELTS. So you have to write complete words such as do not, cannot, that is, right? Okay. So now let us see what essay we are going to discuss today. There are several types of essays, and the very first one, the most simple one, I believe, is the advantage and disadvantage essay. So that is what I am going to start with.
we are given a question statement. So let us see what the statement is. Zoos are sometimes seen as necessary but not poor alternative to a natural environment. Discuss some of the arguments for and against keeping the animals in zoos. क्या कह रहे हैं वो क्वेश्चन में कि जूस को कई बार एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है और एक बुरा ऑल्टरनेटिव भी नहीं माना जाता कि अगर हम एनिमल्स को रखना चाहें, एनिमल्स को कहीं रखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जूस में भी रखा जा सकता है. फॉर कीपिंग एनिमल्स और फॉर गिविंग अ शेल्टर टू एनिमल्स, zoos can be utilized, right? So what do they want? They want discuss some of the arguments for and against. For and against means for means advantages, against means disadvantages. Means एनिमल्स को जूस में रखने की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, दैट यू हैव गॉट टू डिस्कस टुडे, राइट? सो लेट अस सी हाउ डू वी राइट. Okay, let me tell you how do we write. There are 3 parts to every writing task: introduction, body and conclusion, right? These 2 points which I have written, these are just to tell you. आपने अपने essay में इनको mention नहीं करना. आप essay अपना सीधा जो भी आपकी statement होती है जैसे भी है लिखना start करेंगे, इनको highlight या mention नहीं करना है, इनको use करना है, right? So very first line of your essay is punchline or general statement. For example, if we take this essay only, what they are talking about? They are talking about zoos or they are talking about animals. तो या तो आप एनिमल्स के बारे में एक जनरल सी एक आम लाइन लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इकोसिस्टम. अब इम्पॉर्टेंट की जगह आप एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल या इम्पेरेटिव, राइट? So you can write animals are an indispensable or animals are an imperative part of the ecosystem, right? This is a punchline or general statement, or you can write a statement about zoos which I have written, so I am not going to say it orally, right? Now the next line is rewrite the question statement using synonyms. मैंने आपको ग्राफ में लिखना सिखाया था कैसे हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीराइट करते हैं. हम सिनोनिम्स यूज करते हैं, हम सेम मीनिंग वाले वर्ड्स यूज करते हैं. सो सेम गोज फॉर योर एसे ऑल्सो. फर्स्ट आप एक पंच लाइन या जनरल स्टेटमेंट लिखेंगे, फाइंडिंग आउट दैट व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन एसे, एंड देन यू आर गोइंग टू rephrase, you are going to rewrite the question statement by using synonyms. So let us see how I have written the introduction to this essay. Zoos are artificial habitat for animals which are made identical to their natural habitat, right? Zoos क्या है, artificial, नकली. habitat means घर है animals के लिए जो कि क्या है, उनके असली घर जैसे ही बनाए जाते हैं. Zoos. This was my general statement or punchline. I already told you that I have written one general statement over zoos. I also told you a general statement about animals also, right? So you can use either of the general statement for this essay. Now I have rephrased the question statement. I have used synonyms and written the question statement once again. So let us see how I have written. Zoos are often observed as mandatory and not unsatisfactory replacement. Zoos को क्या है, अक्सर माना जाता है. Considered की जगह मैंने क्या लिखा है, observed as mandatory and not unsatisfactory. वहाँ पे poor alternative लिखा था तो मैंने poor alternative को change करके क्या लिख दिया, unsatisfactory replacement. Corresponding with a real dwelling. रियल ड्वेलिंग मीन्स असली घर. जो जानवरों का असली घर है उसका एक बुरा नहीं बट एक ऑल्टरनेटिव, एक रिप्लेसमेंट माना जाता है जूस को, राइट? उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दीजिए फॉर एंड अगेंस्ट, विच आई टोल्ड यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. तो वही लाइन को मैंने लिखा क्या, जूस ब्रिंग अलोंग वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस विद देम. जब हम जूस की बात करें तो क्या है, उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. अगर आपको ये लाइन मुश्किल लग रही है, हाउ यू कैन राइट, जूस हैव वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट? ओके,
With this, our introduction is complete. Introduction 40 to 50 words means 4 to 3 lines. फर्स्ट थी मेरी जनरल स्टेटमेंट, सेकेंड लाइन थी मेरी रीफ्रेजिंग और थर्ड लाइन थी मेरी ये जो मैंने लिख दिया जूस ब्रिंग अलॉन्ग वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। 3 से लेकर 4 लाइनें जो हैं आपके एसे की इंट्रोडक्शन होती है, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ डू वी राइट द बॉडी पैराग्राफ्स। In case of advantages and disadvantages essay, you are going to write 2 body paragraphs. One more thing to mention here again is आपने introduction लिखी, आप start extreme left से करेंगे, no middle of your page, no center, no right, okay? बिल्कुल left से आप लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद जब आपकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है आप एक पूरी लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे और फिर से एक्सट्रीम लेफ्ट से आप अपना बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करेंगे, राइट। सो व्हाट डू वी हैव टू राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1? 2 एडवांटेजेस। आप 3 भी लिख सकते हैं इफ 3 कम टू योर माइंड, बट अगर आपके दिमाग में 3 एडवांटेजेस नहीं आती हैं यू कैन सिंपली राइट 2 एडवांटेजेस, राइट। आप एडवांटेजेस लिखिए आपने 2, आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, पैराग्राफ 2 पर आएंगे और उसमें क्या करेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे। एडवांटेजेस कंप्लीट हुई, अगेन लीव 1 लाइन और उसके बाद आप फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से 2 डिसएडवांटेजेस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं मैंने क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस लिखी हैं। ओके, मैंने आपको एक चीज अपने प्रीवियस लेसन में भी बताई थी कि जब भी आप अपना राइटिंग टास्क अटेम्प्ट करें आप सीधा लिखना मत शुरू करें, थिंक बिफोर यू राइट। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट उस टॉपिक को प्रिपेयर करने में, उस टॉपिक के रीड करने में, उस टॉपिक के बारे में सोचने में लगा लेंगे, you will need very less time to write down the topic. So before you start writing your essay, think about all the points. For example, if I wrote this essay about zoos, I first of all thought what can be the positives, what can be the negatives, and then I started writing. I immediately did not start writing the essay even though I am a tutor, but there are certain things which apply to everyone. If we start writing immediately, sometimes we may get stuck, sometimes we may not be able to think of some advantage or disadvantage or some point related to essay. So it is best to give some time to plan your essay and then start writing, and then you will do wonders with your writing, right? तो वो जो 6.5 पर जनरल वाले स्टूडेंट रह जाते हैं या जो बच्चे 5.5 पर रह जाते हैं एकेडमिक वाले, 6 या 6.5 के अपने रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते, this is the main reason that they do not plan and they just step into writing immediately, right? Think before you write and your essay will turn out to be something different and very presentable, right? So let us see how I have started my body paragraph 1. I remind you again, leave 1 line after introduction and start from extreme left as you can see. So I have first of all written the advantages. It is your wish, you can make body paragraph 1 of disadvantages also. It is not necessary कि पहले आपने advantages ही लिखनी है फिर disadvantages लिखनी है। आप पहले disadvantages लिख के फिर advantages भी लिख सकते हैं, right? So let us see what is your body paragraph 1. To start with the positives, advantages की बात हम कर रहे थे तो मैंने ये लिखा positive से start करें, then after that put a comma, and as I'm going to talk about the first point, so I have used the word firstly. Again put a comma. There is very important role of punctuations, and I need to mention one thing also. सिर्फ 3 punctuations जो हैं आपको allowed हैं, these are comma, full stop, और third punctuation जो आप यूज़ कर सकते हैं and का जो साइन होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं. These are the only 3 punctuations that are allowed to you in IELTS. colon, semicolon, hyphen or any other type of punctuation, inverted commas, nothing is allowed to you, right? So you just have to use comma, full stop and, right? So to start with the positives, comma, firstly comma, there is a constant decrease in the number of woods these days. Woods means जंगल के लिए या फॉरेस्ट के लिए एक सिनोनिम है woods. Constant means लगातार. तो क्या है,
हर एक को पता है क्या, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उसमें नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड द नंबर ऑफ forests available on the planet, on the earth are decreasing. Why? Because trees are being cut, so there is constant decrease in the number of woods these days. So as an alternative, तो एक alternative means एक option की तरह zoos serve as a home to wild animals. What is the actual home of animals? जंगल, forest, right? तो अगर वो कम ही होते जा रहे हैं तो एनिमल्स बेचारे कहाँ जाएंगे? जूस जो है एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन जाते हैं जो एनिमल्स को होम देते हैं, राइट? नेक्स्ट एडवांटेज इज बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, बिसाइड्स दिस इज अ फ्रेज मीन्स एडिशनल पॉइंट लिखने के लिए मैंने यूज करा है। एट जूस, जूस में अगेन अ कॉमा, एनिमल्स गेट प्रॉपर नरिशमेंट एंड केयर एज वेल एज दे आर फेड इन टाइम। एनिमल्स को क्या होता है, अब जंगल में कभी हो सकता है बेचारों को कुछ खाने को मिले ना मिले, बट जूस में क्या है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनके सोने का, हर तरह का पूरा इंतजाम, पूरी केयर, पूरी अटेंशन रखी जाती है। तो वही क्या, वही है, उनको नरिशमेंट मिलती है, केयर मिलता है और उनको खाना मिलता है विच हेल्प्स टू कीप द फोना, फोना इज द वर्ड फॉर एनिमल्स, सेफ, जिससे क्या है, एनिमल्स जो है सेफ रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैंने एक और एडवांटेज लिखी है, मैंने आपको बोला था यू कैन राइट 2 एंड यू कैन राइट 3 ऑल्सो इफ 3 कम टू योर माइंड, राइट? सो दिस इज माई थर्ड एडवांटेज। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ वन मोर फ्रेज आई हैव यूज्ड एंड आफ्टर एवरी फ्रेज you are going to put a comma. So along with this, the endangered species can only be protected by zoos. अब कुछ स्पीशीज हैं जो कि खतरे में है, मीन्स खत्म होने वाली हैं, उनके नंबर ऑफ एनिमल्स क्या है, बहुत कम रह गए हैं, राइट? सो द endangered species can only be protected by zoos, क्योंकि zoos में क्या है, हंटिंग का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी वो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वहाँ पर प्रॉपर केयर करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो जितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो बढ़ भी सकते हैं। वाई? बिकॉज वहाँ पर उनको अपना नंबर, अपनी काउंटिंग बढ़ाने का मौका भी मिलेगा और न्यू बर्थ्स होंगे, प्लस जितने भी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो तो सेफ रहेंगे ही, राइट? सो अलॉन्ग विद दिस द endangered species can also be protected by zoos. Now we move on to the disadvantages. I am repeating again. Leave one line and start from extreme left. On the contrary, ऑपोजिट बात लिखने लगे हो, उल्टी बात लिखने, उल्टी मीन्स दूसरे साइड की बात लिखने लगे हो, डिसएडवांटेज लिखने लगे हो, सो ऑन द कॉन्ट्ररी या ऑन द ऑपोजिट साइड या ऑन द फ्लिप साइड क्या है, zoos कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सेकेंड ऑप्शन टू फॉरेस्ट्स। उन्होंने लिखा था एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, पूर्ण ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स लिखिए जूस के फेवर में और जूस के अगेंस्ट, राइट? तो अब हम क्या कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि जूस जो हैं ये बेनिफिट्स हैं लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मुझे नहीं लगता, या जूस जो हैं उनको एक सेकंड ऑप्शन नहीं कंसिडर करा जा सकता फॉरेस्ट की जगह। वाई? लेट अस सी, एज इज द सिनोनिम फॉर बिकेज, तो आप बिकेज लिख सकते हो, एज लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एज द एनिमल्स आर कैप्टिव्स इन द जूस, ऑफ कोर्स जानवरों को अपनी आज़ादी नहीं मिलती है जू में, वो क्या है, बंदी है, एक पिंजरे में कैद है, राइट? तो जानवरों को क्या है, बंदी बना के रखा जाता है जू में। तो एक आप फ्री हैं और आपकी फ्रीडम आपसे छीन ली जाए, आपको बंदी बना दिया जाए, तो वो तो गलत है। सेम गोज फॉर एनिमल्स ऑल्सो, राइट? तो इसीलिए जूस को हम ऑल्टरनेटिव नहीं मान सकते फॉरेस्ट का। क्यों? क्योंकि जानवरों से उनकी आज़ादी छीन कर उन्हें कैदी बना के रखा जाता है जूज में। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम एज दे डू इन द जंगल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनिमल्स को वो फ्रीडम नहीं मिलती जो कि वो जंगल में इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, आई बिलीव मैंने ये वाला फ्रेज पहले भी यूज कर लिया था, सो इंस्टेड ऑफ बिसाइड्स दिस यू कैन राइट नॉट ओनली दिस, डू नॉट रिपीट द फ्रेजेस, I have written this by mistake, so besides this की जगह you can write not only this, animals have natural instincts which they develop from living in the wild and pass down to their offsprings. Means
हर जानवर की अपनी क्या है, एक खूबी है जो उसे नेचुरली मिली है, जो जंगल में रह के मिली है, उसको उसके एक फ्रीडम से मिली है, ठीक है। जैसे कैट पेड़ पे चढ़ जाती है, ठीक है। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, टाइगर है, लायन है, वो क्या करते हैं, हंट करते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। तो क्या है, ये इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं। अब आपको लगता है कि जूस में लायन को शिकार करने देते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, वो जूस अथॉरिटीज को ही खा जाएगा, राइट। सो दे डू नॉट अलाउ द लायन टू हंट इन द जंगल, rather he is fed with flesh, right। तो क्या है, उससे उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल कैपेबिलिटी है, जो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, वो वहां पर डेवलप नहीं हो पा रही। तो वो अपने आगे जो अपने ऑफस्प्रिंग्स मीन्स अपने बच्चे हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को वो कैसे देगा। सो दे जो वाइल्ड में, जंगल में रह के जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स डेवलप करते हैं, वो उनके डेवलप नहीं हो पाते, और वो अपने कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो अपने ऑफस्प्रिंग्स को देते हैं। These instincts will gradually fade and never return if they are captivated। अगर जानवरों को हम बंदी बना के रख लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उनके जो इंस्टिंक्ट है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी खासियत है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और जब खत्म ही होगी तो वो वापस कैसे आ गई, अगर उनको बंदी बना के रख दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, जितने भी बर्ड्स उड़ते हैं, ऑफकोर्स सभी बर्ड्स उड़ते हैं ऑलमोस्ट। तो बर्ड्स अगर उड़ते हैं तो अगर उनको बंदी बनाए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं उड़ सकते, बहुत कम लिमिट होती है उनके उड़ने की। तो कब तक, जब वो धीरे धीरे उनकी लिमिट कम होती जाएगी उड़ने की, तो अल्टीमेटली क्या है, अगर जूस में बर्ड्स को रख दिया जाएगा तो वो उड़ना भूल ही जाएंगे, राइट। तो इसीलिए जो जूस हैं वो एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं साबित होते, क्योंकि एनिमल्स की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, जो वाइल्ड में रह के डेवलप होती है, जो वो अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को पास ऑन करते हैं, these do not get passed on to their next generations and they can fade away if animals are kept in zoos. The last point is lastly, because it was the last point so I have written lastly. फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा फर्स्टली और लास्ट पॉइंट पे मैंने लिखा लास्टली, अगेन एक कॉमा है। उसके बाद पुटिंग देम इन कन्फाइंड स्पेसेस, कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड, लिमिटेड जगह कौन सी, ऑफ कोर्स जूज ही है। इन जूज मीन्स दे विल नेवर बी एबल टू रिटर्न। अगर उनको बंदी बना के रख दोगे वो बेचारे कैसे वापस जाएंगे, है ना। वो तो जूस के अथॉरिटीज के हो गए। अब जू वालों को पैसा मिलता है अगर लोग आते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, राइट। तो जू वाले वापस तो एनिमल्स को फॉरेस्ट में भेजने से रहे, तो क्या होगा, वो बेचारे जानवर जो हैं कभी अपने घर वापस जा ही नहीं पाएंगे, राइट। So with this, your body paragraph 1 and body paragraph 2, which had advantages and disadvantages, are complete. Now we move to the last part of your essay, which is conclusion. खत्म करना है ऐसे, इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी पैराग्राफ्स डिस्कस करें, अब कंक्लूजन देखते हैं कैसे देखते हैं। गिव एन ओवरऑल समरी, खत्म कर रहे हो, आपने जो कहानी लिखी है, जो ऊपर आपने बातें कही हैं, उसको क्या करना है, एक एंडिंग देनी है ओवरऑल बता के कि हमने क्या बात करी, एक या दो लाइनों में। और अगर आपको कोई सजेशन दिमाग में आता है तो लिखिए, बट इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, राइट। सो लेट अस सी हाउ आई हैव रिटन द कंक्लूजन। टू समराइज, समरी दे रहे हैं, खत्म करने लगे हैं। इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड भी लिख सकते हैं या टू समराइज। आप SE भी लिख सकते हैं, ZE भी लिख सकते हैं, दोनों ही स्पेलिंग्स ठीक हैं। अगेन एक कॉमा आएगा और उसके बाद क्या लिखेंगे, इट कैन बी असर्टेड। असर्टेड मीन्स कहा जा सकता है that zoos have their own merits and demerits। zoos के क्या है, अपने फायदे, merits means फायदे, advantages, and demerits means नुकसान है। zoos have, of course we have discussed advantages and disadvantages। तो यही समरी है कि जो हमने पढ़ा, जो ऊपर एनालाइज करा, जो डिस्कशन करी मैंने ग्लोबली कंसिडर करते हुए सिचुएशन को, that says that zoos have their own merits and demerits। A better alternative could be national parks and wildlife sanctuaries that cater to more natural environment for animals. Yes, in national parks and wildlife sanctuaries, there is no cage for animals. So they were saying it is not a poor alternative zoos, but there is even far of alternative, which are national parks and better wildlife sanctuaries, which have more natural environment for
animals as compared to zoos. So this was a suggestion that came to my mind. If this suggestion would not have come to my mind, I would not have had written it, right? So that is all with your essay. I hope it is clear with to you. अगर कोई भी doubt है, if there are any doubts regarding essay, you can freely drop in your queries in the comments below. And I hope you are enjoying watching my videos. So please like and subscribe to my channel. Thank you.